Good afternoon, students of the BSc third year classes. Once again, I will start to the confined topic of to the bacteria. This time I will go to the description of to the physiology of to the bacteria. Description of the physiology of the bacteria, which means that to the bacteria which perform to the take to the nutrition through the different kinds of the mode. So in here in this topic is bacterial nutrition. Bacterial nutrition, the nutrition of the bacteria. The bacteria which takes to their foods which eligible for to takes to the food for that to the different kinds of the mode and derive their nourishment, which mean that to the have to the energy via to the different pathways. So in this video I will try to understand about to the what is the type of to the nutrition which found only in the bacteria, because the bacteria is the different type and have to the different mode of the nutrition. So purple bacteria, green bacteria, sulfur bacteria, parasitic bacteria, saprophytic bacteria, symbiotic bacteria. So lot of the or the several types of the bacteria which found into the cosmopolitan distribution and have to the according to their habitats for their survival to adopted the different kinds of the mode up to the nutrition. So that to the we will go now to the first of all describe to the how many types of to the nutrition which found into the bacteria. Nutrition is the process in which to the organism which takes to the food material for that to their growth and development and to the performing to the vital activities, and so called this is the survival for that to the organism. So in particularly to the we know that how is the process, how is the mechanism which perform that to the nutrition for that to the nutrition in the bacteria. So in the bacteria nutrition is a particularly to the two types. First is the autotrophic and to the heterotrophic. The two types, first is that autotrophic and second is that heterotrophic. Second is that heterotrophic. So there are the two types of the bacteria in which the autotrophic is further subdivided into two categories. Is that first is photoautotrophs and second is that or photosynthetic bacteria. Autotrophic bacteria, heterotrophic bacteria, then is the further divide photoautotrophs or also called to the photosynthetic bacteria, and another one is called this is the photoautotrophs and these are the chemoautotrophs of the chemosynthesis. Chemoautotrophs, trophic or the trophs, chemotropic or
synthetic bacteria. These are the further subdivided in the categories, so that first of all to the photoautotrophs in the purple and red bacteria. First is that purple and red bacteria, and the second is that to the green bacteria. Green bacteria. Photoautotrophic bacteria or the photo or synthetic bacteria, which redivided purple and red bacteria and the green bacteria, which go now to the chemoautotrophs. In the chemoautotrophs, that is the several kinds of the bacteria which found sulfur bacteria, iron bacteria, hydrogen bacteria, nitrifying bacteria and methane bacteria. Sulfur bacteria is the several kind. Sulfur bacteria, iron bacteria, sulfur bacteria, iron bacteria, hydrogen bacteria, nitrifying bacteria, sulfur, iron or the nitrifying, and we are going to the sulfur, iron, hydrogen and methane. Methane bacteria. This type of the bacteria which are included into the chemosynthetic processes. What is the meaning of this type of the bacteria, which I explained in the go ahead. In the category of the heterotrophic bacteria is 3 types. First is that parasitic bacteria. Second is the saprophytic bacteria. And third is that symbiotic bacteria. So that the nutrition in the bacteria is the different modes and the different procedures which adapt to the bacteria, or as you can say that to the categorization of to the bacteria on the nutrition, on the behalf of the nutrition, is the several type. So you can say that is the bacteria is classified on the basis of the several bases, the structure, shape, due to perhaps to the presence of the flagella, mode of the nutrition. So this is the category up to the bacteria. So first of all, we are going out to the in the discussion up to the autotrophic bacteria. What is the meaning of the autotrophic bacteria? तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की, बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकार कैसे वो न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है उसको हम देख रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन, मैंने सबसे पहले बताया कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो है जो बैक्टीरिया होता है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त करता है, अपना जो है वाइटल एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करता है एनर्जी को प्राप्त करने के बाद और जीवित रहता है। तो इसी आधार पे उसमें कितने प्रकार के मॉड हैं, तरीके हैं, उसको हम देखते हैं। आउटो का मतलब देखिए यहाँ पे सेल्फ होता है, ग्रीक वर्ड सब है, ऑटोस का मतलब सेल्फ होता है। तो इसका मतलब सेम हुआ कि उस प्रकार के बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे क्या है, विच आर एलिजिबल टू मेक द फूड फॉर दैट
अपने लिए खुद भोजन को बनाते हों, ऐसे बैक्टीरिया की बात हो रही है। द आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया विच मैन्युफैक्चर आर एलिजिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ द फूड फॉर दैट टू द अलाइवनेस। तो अपने जीवन के लिए भोजन को जो बनाते हैं तो उस प्रकार के बैक्टीरिया आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस और कीमोसिंथेटिक प्रोसेसेस के माध्यम से एनर्जी को प्राप्त करके अलाइव रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, सबसे पहले कहने का मतलब है आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होते और खुद जो है भोजन बनाते हैं। तो वहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है विच आर गोइंग इनटू द कैटेगरी फोटो आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे फोटो आउटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, दोज ऑफ द बैक्टीरिया विच परफॉर्म टू द लाइक अ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस on the behalf of to the some of the pigment which you have to the bacteria, thus like to the green bacteria and to the for that to the purple bacteria। तो पर्पल और रेड बैक्टीरिया के लिए जो पिगमेंट पाया जाता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है। बैक्टीरियो पर्पल बैक्टीरिया के लिए पर्पल, और यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है पर्पल, और रेड के लिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन ये दो पिगमेंट होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, खासकर पर्पल बैक्टीरिया और रेड जो बैक्टीरिया होते हैं इस पिगमेंट को कंटेन करते हैं। जबकि जो ग्रीन बैक्टीरिया होता है वो कंटेन करता है, ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल को कंटेन करता है, और दूसरा जो है या बैक्टीरियो वेरिडिन, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वेरिडिन, ये क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। अलग टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परफ्यूरिन, फॉर दैट टू द पर्पल एंड रेड, एंड फॉर दैट टू द ग्रीन द क्लोरोबियम क्लोरोफिल और द बैक्टीरियो वेरिडिन जो पिगमेंट होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जस्ट लाइक टू द परफॉर्म फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विच फाउंड इन टू द हायर प्लांट्स। इन द हायर प्लांट्स the photosynthetic process which are going on due to the have to the S2 and to the carbon dioxide, and which trap to the radiant energy, which means that to the sunlight radiant energy is converted into the chemical energy, and after that to the which are utilization of the S2 and the CO2 which make the starch, which means that to the carbohydrate, so that this is the long processes, typical processes, photosystem first and photosystem second which are involved takes place, so that to the numbers of the enzymes and to the substances which are cooperating. So that's like to the mechanism which are performing by to the bacteria. Who's the bacteria? Who's the photoautotropic bacteria or the photosynthetic bacteria? For that to the purple and the red bacteria, the bacteriochlorophyll or the bacteriopurpurin, and for that to the green bacteria, chlorobium chlorophyll, and to the bacterioviridin, which are found and to takes to the which manufacture their food material for that to the liveness. तो अपने जीने के लिए भोजन को प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस के माध्यम से, जो कि इस प्रकार के पिगमेंट को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उस प्रकार की बैक्टीरिया के जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए पर्पल
सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो कि भोजन को प्राप्त करते, भोजन को बनाते हैं थ्रू दिस प्रोसेसेस लाइक। तो फोटो आउटोट्रॉप्स मतलब, जो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट क्या है, सन रेज जो है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी टू द ग्रीन प्लांट which is the producers and form to the all the organic matter in the form as a like to the organic food material, so which consume to the consumers group. So that's in the here to the as like same to the bacteria which performing to the photosynthetic process along with these kinds of the pigmented sulfur bacteria, non purple sulfur bacteria and to the green sulfur bacteria, so that is the which manufacture their food material through this processes. So तो इस प्रक्रिया के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है, वो उस प्रकार का, यहाँ पे जो कीमो आउटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस जो होते हैं उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से करके एनर्जी को प्राप्त करते हैं, which are energy obtained through the inorganic substances through the process of the oxidation। तो ऑक्सीडेशन करके इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस से एनर्जी को प्राप्त करने वाले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं या फिर कीमो आउटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ये भी अपने द्वारा एनर्जी को प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, तो डायरेक्टली ये। तो इसके इस ग्रुप में अलग अलग बैक्टीरिया हैं, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और मेथिन बैक्टीरिया है। ये अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया वो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होनी है, तो हाफ O2 कर देते हैं और इससे इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, तो ऑक्सीडेट होगा। तो ऑक्सीडेशन में वो ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन होगी तो सल्फर, यहाँ पे देखें सल्फर अलग हो जाएगी प्लस, और ये O2 इससे जाके जुड़ जाएगी तो क्या बना लेगी, H2O। तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि S एंड हाफ H2O आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये जो सल्फर बैक्टीरिया है वो वहाँ पे एनर्जी को प्राप्त कर लेता है और वहाँ से क्या कहते हैं कि अपने को अलाइव रखता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं आयरन बैक्टीरिया की। आयरन बैक्टीरिया जो होता है वो आयरन बियरिंग जो वाटर्स होती हैं उसमें फेरिक कंपाउंड बनाती हैं। तो ये जो है जीवाणु जो होता है वो यौगिक में उपस्थित होते हैं जहाँ पे लोहे ज़्यादा होते हैं, आयरन जहाँ ज़्यादा होता है, और वो फेरस कंपाउंड से फेरिक कंपाउंड को जो है बनाते हैं। तो ये लेप्टोथेरैक्स आर्ची जो बैक्टीरिया होता है, लेप्टोथेरैक्स आर्ची जो बैक्टीरिया होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। FeCO3 प्लस O2 FeCO3 प्लस O2 प्लस FeCO3 प्लस O2 प्लस H2O, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं नंबर के आधार पे। तो 4 जो है ये है और 6 ये है। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। और ये क्या है, अब देखिए O2 है तो ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बदल जाएगी फेरिक से फेरिक कंपाउंड में। तो फेरिक कंपाउंड में जब बदलेगी तो ये जो है ये तो बन जाएगी 4EOH3 4FeOH3 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगी। और यही क्या होता है एक्चुअल में फेरिक कंपाउंड होता है और उसके साथ साथ में एनर्जी फॉर्म करता है
और CO2 को रिलीज करेगा, क्योंकि डिग्रेडेशन होता है और डिग्रेडेशन में 2-3 प्रोसेसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, CO2 निकलता है और एनी काइंड्स ऑफ द एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। तो फेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ये आयरन बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। तो यहाँ से एनर्जी को वो प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। अब नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, और एक तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होता है, जो अमोनिया को नाइट्राइट में, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक करके, यहाँ पे प्रोसेसेस को देखते हैं अच्छे तरीके से। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ द बैक्टीरियाज हैं जहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमोनास और जो है हम देखते हैं कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ये जो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया अमोनिया जो होता है, अमोनिया को नाइट्राइट में अमोनिया को नाइट्राइट में मतलब NO2 इसमें करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जो होता है, नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो दूसरा ग्रुप बैक्टीरिया है। ये नाइट्राइट को, ये जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए दो, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, देयर आर द टू ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड देन द नाइट्रोटोबैक्टर। तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब NH2O जो है यहाँ पे O2 यहाँ पे इसके साथ में जुड़ेगा, ऑक्सीडेट करेगा और इस प्रकार के दो नाइट्राइट देन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ये एनर्जी को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। ये जो है सॉइल में ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है सॉइल में, उसको मेथेन और जो है वाटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेथेन बैक्टीरिया को, मेथेन देख लेते हैं। तो ये वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे किसमें? मेथेन में, और जो है किसमें? आयरन बैक्टीरिया जो है मेथेन में चेंज करेंगे। सॉरी, मेथेन की बात हो रही है अब, तो मेथेन की बात हो रही है। तो मेथेन बैक्टीरिया में हम जो है मेथेन बैक्टीरिया जो होता है वो सिंथेसाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू द ऑब्टेनिंग एनर्जी। और हम लास्ट में बात करते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। तो हाइड्रोजन जो बैक्टीरिया होता है वो जो है सॉइल से हाइड्रोजन को मेथेन में और जल में चेंज करता है। तो 4H2 प्लस CO2 और देन अब इसकी ये क्या बना देगा? CH4 बनाएगा, मेथेन बनाएगा और वाटर को निकालेगा। CH4 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई। और देखिए यहाँ पे ये चार हाइड्रोजन को साथ में यहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन कर दिया और जितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द H2O जो बचा वो उसके साथ में एनर्जी निकल गई। तो ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो है ब्रेकडाउन होके और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और वहाँ से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी को प्राप्त करके सर्वाइव कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग इनटू द अनदर ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक ऑफ द बैक्टीरिया आर दोज which are not synthesized, yeah, which are not able to the synthesize their food, yeah, unable to the synthesize their food. So depend upon to the another group, another organism or the animals.
so which mean that to the obtain ready-made food for that to ready-made food from that their host, अपने होस्ट से प्राप्त करते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? पूरी तरीके से पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। देखिए पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि जो अविकल्पी, विकल्पी और विकल्पी हिंदी में बोला जाता है, जहाँ पे तो पैरासाइट जो होते हैं वो एनिमल्स पे, प्लांट पे या माइक्रो इस प्रकार से, तो खासकर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज विच आर क्रिएटेड बाय द बैक्टीरिया। तो बहुत सारे जो है डिजीज़ जो क्रिएट किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वो जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया एंड फूड पॉइजनिंग, ऑल द तो ये जो डिजीज़ होते हैं वो पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ये मैंने कहा कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि ये एनाबल होते हैं, भोजन को बना नहीं सकते, जिसके कारण जो है तो जो जिस पे डिपेंड होते हैं उसको होस्ट बोला जाता है। तो होस्ट तो बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और डिजीज़ को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और वहाँ से वो भोजन को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को देख लेते हैं। डेथ एंड डीके जो मटेरियल होता है, वहाँ से ये भोजन को प्राप्त करते हैं। और तो आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जिस प्रकार से जो फूड मटेरियल्स होता है, जो चमड़े होते हैं, जो फल होते हैं, मुरब्बे होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, वहाँ से तो डेथ एंड डीके मटेरियल्स, on the death and decay material bacteria which are obtained their food from just like to the different kinds of the death and decay materials, fruit and food materials and others। तो इस प्रकार से मृतोपजीवी हिंदी में इसको बोला जाता है। मृतोपजीवी वो होते हैं जो कि डेथ एंड डीके पार्ट से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और वहाँ से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट जो सिम्बियोटिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताए, लेग्यूमिनोसी जो प्लांट्स होते हैं, जो जिसको आप जो चना, मटर और ये सब दलहनी जो फसलें होती हैं, खासकर उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम जो बैक्टीरिया होता है वो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वो उसको नाइट्राइट टू देन नाइट्रेट में बदल देता है और उसके बदले में इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भोजन को बनाता है। तो सिम्बियोटिक, और यहाँ पे एक दूसरे की सहायता, मतलब सिम्बियोसिक रिलेशनशिप को शो करते हुए भोजन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते। सिम्बियोटिक में भी 2 प्रकार की कैटेगरी, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म आता है। म्यूचुअलिज्म में आपस में एसोसिएशन करके दोनों पार्टसन बेनिफिटेड होते हैं, जबकि कमेंसलिज्म में एक पार्टनर को बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को लॉस भी नहीं होता। जबकि एक इसके विपरीत या अपोजिट जो प्रोसेस होता है एंटागोनिज्म, तो एंटागोनिज्म में एक को लॉस होता है, एक को हानि होता है, एक को फायदा होगा, एक को जो है घाटा होता है, मतलब एक बेनिफिशियल होगा, एक जो है हार्मफुल होगा। तो वो पैरासिटिक की तरह होता है। तो कुल मिला के डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉड आपने देखा जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के मॉड्स ऑफ द न्यूट्रिशन को कंटेन करता हुआ रिप्रेजेंट करता है और शो करता है। तो ये इसके आधार पे जो आउटोट्रॉपिक है, कुछ पिगमेंट की सहायता से अपने आप खुद भोजन बना लेते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के माध्यम से, और कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में पैरासिटिक, सिम्बियोटिक एंड सेप्रोफिटिक होते हैं, जो कि डिजीज़ क्रिएट करके किसी बॉडी होस्ट पे जाते हैं, डेथ एंड डीके पार्ट से होते हैं, और कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इस प्रकार से बनाते हैं जो कि दोनों तरफ से फ़ायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बैक्टीरिया के अलग अलग मॉड के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है और उनको डिटरमाइन
डिफाइन किया गया है और उनको निर्धारित किया गया है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन है। सो दैट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन विच ऑक्युपाइज इन द बैक्टीरिया, फॉर दैट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हैबिटाट, एंड so that this topic is closed. Thank you.